ठीक है. So what does that mean? For example, if we are drawing something over here, ठीक है, let's say this, uh, let's change the color first of the outline and the stroke, sorry, stroke and the fill. ठीक है. So now if I draw something, as you can see over here, ठीक है, in flash the stroke and the fill are two different things. ठीक है. For example, if I move it, the stroke will remain there and the fill will be moved. ठीक है. For example, I do it again. ठीक है. I am taking this polygonal tool and then I draw a polygon. ठीक है. अब I need to move this, the whole shape that I have drawn. ठीक है. I want to move this. So what will I do? I will go to this move tool and then when I click and then I try to move it, only the fill will move. ठीक है. क्यों? Because in Flash, the fill and the stroke are considered two different things. ठीक है. तो what do we do if we need to move them at the same time? मतलब अगर मुझे इन दोनों को एक साथ मूव करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इनको ग्रुप करना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं कैसे करूंगी इसको ग्रुप? वो ग्रुप करने के लिए मुझे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द केस. अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो बोथ आर डिफरेंट, both are separated. So if I need to just group them, what do? I just select it. ठीक है. I have selected it now. ठीक है. My screen is blur. My screen is not blur. Maybe the internet connection at your end is unstable, so that is why you are watching it blur, because the internet is not transferring all the bytes. ठीक है. जब इंटरनेट वीक होता है तो वो क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है. जितने पिक्सल्स उसको रिसीव होते हैं वो उतने पिक्सल्स देता है, जिसकी वजह से वो ब्लर हो जाती है. ठीक है. माई स्क्रीन इज क्लियर ओवर हियर. ठीक है. सो व्हाट डू टू ग्रुप बोथ आउटलाइन एंड फिल? I just select them and I go to modify and then I group. Can you see this group over here? So this is the group option. I click on it. So now both of them are grouped. So now let's just check if I need to move this, so the whole shape will move. Can you see it? Because I have grouped them. मैंने इन दोनों को join कर दिया है. I have grouped the outline and the fill. But initially this was not the case. क्यों? क्योंकि this was not grouped at that point. So the fill and the stroke were two different things. So what did I do? I just select that whatever I need to group and then I go to modify and then I group. So both of them are now grouped, and when I move it, so both of them move together. That means they have been grouped. So this is as simple as that. My screen is blurred to everybody. Please let me know. No, it's not blur. ठीक है. प्लीज ट्राई टू मैनेज. थोड़ा इसको समझें. स्क्रीन ब्लर भी है तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, सो वी कैन नॉट एड्रेस दिस. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ टेक्स्ट. सही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू राइट समथिंग, व्हाट डू? यू जस्ट गो टू टेक्स्ट टूल. ठीक है. अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और वी टेक अनदर फाइल. ओके. ठीक है. तो नई फाइल हमारे पास खुल गई. दिस इज द टेक्स्ट टूल that you have been using many times in your life. आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा इस टूल को, यकीनन. ठीक है. अब हम इस
इसके अंदर कुछ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कीप स्माइलिंग, बट द कलर इज नॉट गुड बिकॉज ये बहुत छोटा भी है और कलर भी अच्छा नहीं है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। सही। एज सुन एज आई select the text tool, the property inspector start holding all the details of the text। मतलब जैसे ही मैं इसको select करूंगी ना, everything will be related to text over here in the properties inspector। this is the property inspector window over here, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ text से related आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले से colors change करती हूँ। सबसे पहले I need to select, otherwise the color will not be applied, and then I apply a color, and then I just increase the size from here. Let's say I make it 60 and I press enter, and then I bold it, and then I center align it, ठीक है। So now this is my text, ठीक है। So this is how we work with text, ठीक है। This is very simple। आपने क्या करना है? You just need to select the text tool from here। सही है। जैसे आप text tool क्लिक करेंगे, text की प्रॉपर्टीज आने लगेंगी, ठीक है। And you just select the, ठीक है, टाइप ऑफ द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कीप, ठीक है। कोई सा भी ले लें आप इसमें से। ये अच्छा है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स कीप इट पिंक, एंड देन वी राइट इट ओवर हियर, ठीक है। कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया। तो बस बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, बिकॉज यू हैव यूज्ड वर्ड and other softwares also, so you are able to do it, and you are able to change the size and color and the font style also, ठीक है। so this is how you work with text tool, ठीक है। now come to page number 107, ठीक है। 107 पे आ जाए, ठीक है। have you all come to page number 107? ठीक है। now we have to convert the text into basic shapes, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, मैं आपको जो बात कहने वाली हूँ जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव a text, let's say as you can see on the screen, ठीक है। there are different types of properties that you can change। You can change the color, you can change the font style, you can change the size, ठीक है। but you cannot reshape it, ठीक है। आप इसका जो टेक्स्ट है इसको रीशेप नहीं कर सकते, ठीक है। और वो वाली सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते जो किसी भी ड्राइंग के ऊपर अप्लाई होती हैं, किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको किसी शेप के तौर पे ही एडिट करना हो और इसके अंदर कुछ क्रिएटिव सा करना हो, तो मुझे सबसे पहले इसको बेसिक शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी मैं बता दूंगी आपको अलग से फ्लैश डाउनलोड करने का फॉर्मेट, बट आई हैव लेस टाइम, तो मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है लाजमी, ठीक है। अच्छा, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू बेसिक शेप्स, जब मैं शेप में चेंज करूंगी then I'll be able to edit it as text, ठीक है। तो मैं शेप में इसको कन्वर्ट कैसे करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने शेप में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यू मस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस विद द सिलेक्शन टूल, एंड देन यू सिलेक्ट इट, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टेप्स को और से समझिएगा कि टेक्स्ट को बेसिक शेप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जस्ट सिलेक्ट इट एंड देन गो टू मॉडिफाई। नो रबीसा, जस्ट स्टे ऑनलाइन। ये मेरी आवाज सबको आ रही है। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी।
आप अपने माइक को थोड़ा चेक करें, जो आपने स्पीकर या हेडफोन्स या वट एवर यू आर यूजिंग, वो आप जरा चेक करें, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन गो टू मॉडिफाई एंड ब्रेक अपार्ट, ठीक है। एंड देन गो टू मॉडिफाई एंड देन ब्रेक अपार्ट अगेन। समझ आ गई? बस दिस इज द स्टेप। नाउ दीज हैव बीन कन्वर्टेड टू द बेसिक शेप्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक शेप्स में कन्वर्ट हो गए हैं? कि अब आप देखिए कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही होंगी यहाँ पे, सही है। यहाँ पे शेप की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये देखें शेप। सो दैट मीन्स दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ शेप। अब देखें, मैं इसको शेप की तरीके से रीसाइज भी कर सकती हूँ, इसकी शेप भी चेंज कर सकती हूँ, इसके साथ बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ। इसको शेप की तरह से कलर भी कर सकती हूँ। कैसे कलर कर सकती हूँ? इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी और इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, उसका ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखिए ग्रेडियंट भी हो गया ये। और मैं अब इसको आराम से इसके साथ वो मैनिपुलेशंस कर सकती हूँ सारी, जो कि मैं किसी भी शेप के साथ करती हूँ। नजर आ रहा है? देखें कितना आर्टिस्टिक लग रहा है ये, ठीक है। सो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू बेसिक शेप्स। आई एम रिपीटिंग, ठीक है, आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। आप लोग सब देख लें कि मैंने किस तरह से किया था, ठीक है। दिस वॉज अ सिंपल टेक्स्ट, आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा, ठीक है। एंड हाउ यू कन्वर्टेड टू बेसिक शेप्स, बहुत सिंपल है। जस्ट सिलेक्ट एंड ब्रेक अपार्ट, सही है, ब्रेक अपार्ट 2 times, ठीक है। एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू शेप। अभी मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो देखें ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट आर अपियरिंग बिकॉज इट इज टेक्स्ट। लेकिन जब मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर दूंगी तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप विल बी कमिंग। तो आई जस्ट सिलेक्ट इट एंड देन आई गो टू मॉडिफाई, ब्रेक अपार्ट, सॉरी, ब्रेक अपार्ट and modify and break apart. That's it. So now it has been converted to basic shapes, and now you will see the shape properties over here. You can change the gradient also, जिस तरह से भी आप करना चाहें, जो भी gradient आप रखना चाहें, ठीक है। अब जो भी रखेंगे वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब ये है, अब आप इसको अगर रीशेप करेंगे तो वो कैसे करेंगे? आप यहाँ आए, यहाँ क्लिक करें स्क्रीन पे, सही। और फिर जैसे ही आप ये जो सिलेक्शन का जो टूल था ना, दिस, आप इसके पास लेके जाएंगे तो देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। when the cursor changes to this, कि यहाँ पे आपको एक लाइन सी बनी हुई नजर आ रही है नीचे एरो के, that means now you can reshape. At that very moment just click and drag. जैसे ही कर्सर इसमें चेंज हो जाए, that means now you can reshape the way you want. Just to give it a fancy look. You can do whatever you want as you do with the शेप। कर्सर का इसमें चेंज होना बहुत जरूरी है। ये जो कर्सर आपको नजर आ रहा है ना, जब ये कर्सर ऐसा होगा ओनली देन यू विल बी एबल टू, जब ये कर्सर ये वाला है जिसके नीचे कर्व सी लाइन बनी हुई है, तभी आप इसको रीशेप कर सकेंगे, ठीक है। बस ये आपका इतना सा काम है, जस्ट टू चेंज इट टू बेसिक शेप्स, मॉडिफाई, ब्रेक अपार्ट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज एनिमेटिंग टेक्स्ट विथ टाइमलाइन इफेक्ट्स, पेज नंबर 107। एनिमेटिंग टेक्स्ट विद टाइमलाइन इफेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप कैसे एनिमेट, अब देखिए फाइनली एनिमेशन आ रही है आपकी। फ्लैश जो है इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू एनिमेट ना,
तो अब फाइनली आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, वो एनिमेशन जो आपने अक्सर मूवीज में भी देखी होगी, एनिमेटेड मूवीज, कि किस तरह से एनिमेशन होती हैं और किस तरह से करते हैं. नाउ फाइनली द एनिमेशन आर कमिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. सबसे पहले हम एनिमेट कर रहे हैं टेक्स्ट को. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? जस्ट फॉलो द स्टेप्स. ठीक है, क्या करना है आपने? हम वापस चले जाते हैं अपने उसी बेसिक उस पे. ठीक है, ये है हमारा टेक्स्ट. ठीक है, आपने क्या करना है? इसके ऊपर राइट क्लिक करना है. सबसे पहले यू नीड टू सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड क्यों नहीं आ रहा है इफेक्ट इसमें? टाइमलाइन इफेक्ट्स. यस, टाइमलाइन इफेक्ट्स एंड देन एक्सप्लोड. ठीक है, राइट क्लिक, टेक्स्ट लिखना है. ठीक है, टेक्स्ट लिखें. सही है, मैं आपको फिर दोबारा से स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको क्या करना होगा. ठीक है, जस्ट राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट. अभी आपने कुछ बेसिक शेप्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया है, मैं नई फाइल में बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सही है, अगर नई फाइल में भी लिखेंगे तो इस तरह से आपका टेक्स्ट हो गया. इसको शेप वगैरह में कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है. जस्ट राइट डाउन द टेक्स्ट. ठीक है, एंड देन सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन राइट क्लिक एंड देन टाइमलाइन इफेक्ट्स एंड देन इफेक्ट्स एंड देन एक्सप्लोड. ठीक है, तो ये आपको शो करेगा. सही है, ये देखें, ये छोटी सी एनिमेशन है एक आपके टेक्स्ट की. ठीक है, ये देखें, बहुत छोटी सी एनिमेशन है कि आप कैसे उसको कर सकते हैं. ठीक है. और भी कर सकते हैं. कहाँ है हमारी एनिमेशन? ठीक है, ये रही हमारी एनिमेशन. राइट क्लिक करेंगे, टाइमलाइन इफेक्ट्स, इफेक्ट्स एंड एक्सपेंड. अच्छा, ये मैंने फिक्स कर दिया है इसके ऊपर. एक इफेक्ट पहले ही लगा हुआ है, तो हम पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा. हम दूसरी फाइल पे देख लेते हैं. ठीक है, हम दूसरी फाइल पे टेक्स्ट ले लेते हैं और कुछ भी लिख लेते हैं. लेट्स से हम लिखते हैं हैव फन. ठीक है, इसको हम जरा अच्छी सी एक लुक दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं है ग्रेडियंट का. ठीक है, अब क्या करना है कि जस्ट सिलेक्ट इट. इसका चेंज कर देते हैं. ठीक है, और इसको हम एनिमेट कर देते हैं. दूसरी वाली एनिमेशन देख लेते हैं वो कैसी है. ठीक है, तो अब एंटर प्रेस कर करके चेक करेंगे इसको.
ये आपने देखा होगा ना अक्सर किस तरह से नजर आता है कि नाम जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन एनिमेट द टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेप ट्वीनिंग। ठीक है, अब ये शेप ट्वीनिंग और ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपका, एनिमेटिंग टेक्स्ट विद शेप ट्वीनिंग, पेज नंबर 108। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये आपको पूरे स्टेप्स लिखे हैं मैं पेज नंबर 108 पे। सही है, शेप ट्विनिंग के थ्रू एनिमेट किस तरह से करते हैं। और देखें, एक बात आप मेरी बहुत गौर से सुन लें, एवरीबडी, you might know about it, I don't know, I'm not sure, but your result is gonna be out in just a couple of days। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि आप लोग का रिजल्ट जो है 30% is from the third bi-monthly assessment that you have already given, that is fixed, that cannot be changed। ठीक है, वो आपका 30% रिजल्ट हो चुका है जो आप पहले दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30% इज फ्रॉम the assignments that were given to you in the month of March, April and May। ठीक है, March, April, May में when there were no online classes going on, at that time the homeworks that were given to you, um, from those homeworks the 30% of the result will be marked। ठीक है, and altogether these have become 60% of your result, and the rest of the 40% of your result is from the assignments that are giving that are being given to you in these days in the month of June and July। ठीक है, when the online classes are going on। ठीक है, तो ये अगर आप ये जो मैं असाइनमेंट्स आपको दे रही हूँ, इफ यू डोंट डू इट ऑन टाइम, तो ये बात याद रखें कि जैसे मार्च में और मार्च अप्रैल मई के मंथ्स के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल गया था ना होमवर्क करने का, बट नाउ यू विल नॉट बी गिवन एनी टाइम। ये क्या हो गया? ठीक है, यू विल नॉट बी गिवन एनी टाइम बिकॉज आपकी जो रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से 10th जुलाई तक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो 10th जुलाई तक फाइनल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 5th जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे उसके ऊपर काम करना, एंड 5th जुलाई से पहले तक हम जो है वो सिर्फ अगर जैसे कि कुछ टीचर्स ने तो कर भी लिया है। ठीक है, तो 5th जुलाई तक आपका ये 40% रिजल्ट जो है ये फाइनल हो जाएगा, और 30% आपका जो 60% है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है क्योंकि आप थर्ड असेसमेंट दे चुके हैं, और मार्च अप्रैल मई का जो असाइनमेंट्स है वो भी आप ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गिवन इट। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एक दे रही हूँ अभी भी कि आपके पास एक दिन और है। ठीक है, मैं एक दिन और आपको दे रही हूँ जस्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट दैट वर गिवन टू यू इन मार्च अप्रैल में, जो कि मैंने समर पैक दिया था और मैंने एक आध वर्कशीट कोई दी थी, वो अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है सो प्लीज डू इट इन जस्ट वन डे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसका टाइम एक्सपायर हो चुका है, 31 मई का टाइम था, तब तक वो आपको देना था। ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं भी दिया है तो वो कल तक मुझे लाजमी सेंड कर दे, तो मैं उसके मार्क्स दे दूंगी, लेकिन उसके बाद में उसके कोई मार्क्स आपको नहीं दूंगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, अभी के जो असाइनमेंट्स हैं जून जुलाई के, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, ऑल द असाइनमेंट दैट विल बी गिवन टू यू ऑन गूगल क्लासरूम के ये असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम पे जो मैंने असाइनमेंट आपको दिए हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन आंसर्स का दिया है, या अभी मैं ये वाला दे दूंगी कि शेप ट्यूनिंग का आपको करना है। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट्स जो हैं ये आपके 40% बनने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज डू इट ऑन टाइम, एंड इसको जैसे जैसे जो जो डेडलाइन दी हुई है उसी पे ही आप वापस दे दें, वरना अगर आप ज्यादा लेट करेंगे इसका काम का तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर इज ओनली 1 वीक रिमेनिंग इन योर क्लासेस, उसके बाद आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास और आपके साथ तो और कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी आपकी। नहीं, ऑर्डिनो को छोड़ दो, ऑर्डिनो का कोई असाइनमेंट ऐसा नहीं करना है अभी, सिर्फ बुक से रिलेटेड करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये आप लोगों ने कर लेना है, और फिर उसके बाद मैं आपकी एक और एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, शायद मुझे आपको शेड्यूल्ड क्लास आपकी क्लास में ना मिले। ठीक है, इसलिए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। देयर इज ओनली वन टॉपिक रिमेनिंग विच इज वेरी इजी, ऑल द स्टेप्स आर गिवन इन द बुक, जस्ट फॉलो द स्टेप्स एज टोल्ड।
इन द बुक, ठीक है, उसको आप जरूर कर लें। और अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या किसी के साथ कोई मसला है, कोई भी है चीज़ है, तो प्लीज़ उसको किसी तरह से मैनेज करें एंड ट्राई टू डू इट। नहीं फातिमा, वो नहीं, ऑर्डिनो वाला छोड़ दें, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिटेल है, एक्स्ट्रा एक असाइनमेंट है ऑर्डिनो का। आप बुक से रिलेटेड करें अभी फिलहाल, ठीक है, जो भी बुक में है उसको छोड़ दें, ठीक है, और ये करें। और कुछ किसी के पास अगर नहीं है, नहीं चल रहा, तो किसी फ्रेंड के पास चली जाएं या किसी के कंप्यूटर में जाके कर लें, ठीक है। और ये आप ज़रूर कर लें ये असाइनमेंट। और आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जब आपका आउटपुट आ जाएगा ना एनिमेशन का, और वो एनिमेशन चल रही होगी, जैसे कि ये चल रही है अभी मेरे पास, ठीक है, बस इसकी आपने मोबाइल से वीडियो बना लेनी है, ठीक है। ये पिक्चर खींच लें, ठीक है, हाँ पिक्चर खींच लें बस, ताकि आपके लिए गूगल क्लासरूम पे लगाना आसान हो, ठीक है। बस इसकी एक पिक्चर खींच लें, जब आपकी एनिमेशन चल रही है मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने किया है, ठीक है। बस जैसे एनिमेशन चलेगी ना शेप ट्यूनिंग वाली आपकी, आप उसकी पिक्चर खींचें, और वो पिक्चर आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे उस असाइनमेंट पे, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने असाइनमेंट कर लिया है, ठीक है। तो फिर मैं उसके मार्क्स दे दूंगी। किसी के पास नहीं है तो वो प्लीज कर ले इसको मैनेज, किसी ना किसी तरह किसी फ्रेंड के पास जाके या किसी के घर पे जाके इसको कर लें, और इसको जरूर अपलोड कर दें। कौन सी एनिमेशन लगानी है भाई? एनिमेशन आपको ये लगानी है कि आपको आना है पेज नंबर 108 पे, ठीक है। होमवर्क में वैसे लगाऊंगी अभी, अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा है तो वो क्या नाम है, होमवर्क देख लेगा गूगल क्लासरूम पे। बेटा घर नहीं जाना तो आप खुद कर लेना, इंटरनेट पे मिल जाता है, ठीक है। और इंटरनेट पे क्या कहते हैं, बहुत इसका इजी तरीका है कि आप कर सकती हैं, ठीक है। या फिर आप देखें, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप, पता है ऐसा भी तरीका है कि आप अपने घर पे बैठ के किसी और के घर का कंप्यूटर यूज कर सकती हैं, आपको पता है कि आप अपने घर पे बैठी हुई होंगी और आप अपनी फ्रेंड का जो कंप्यूटर है वो यूज कर लेंगी अपने घर से, अगर आपके पास फ्लैश नहीं हो रहा ना, तो आप अपने घर से उसको यूज कर सकती हैं। इसका तरीका भी मैं बता दूंगी, और फ्लैश डाउनलोड का तरीका भी मैं बता दूंगी, और लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकती हैं इफ यू नो हाउ टू डू इट, और उसको अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप उसका लिंक भी लगा सकती हैं, ठीक है। या पिक्चर लगा दें सिंपली, जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, और जिसको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दे। अम, और बाकी जो लोग फ्लैश जिनका नहीं खुल रहा है उनको मैं उनके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं फ्लैश डाउनलोड करने का एक तरीका बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं उसकी वीडियो, जैसे अभी मैं आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग की वीडियो लगाऊंगी ना, वैसे ही फ्लैश डाउनलोड करने का तरीका की भी मैं वीडियो बना के और मैं लगा दूंगी यूट्यूब पे, जैसे कि आप बाकी सारी वीडियोस मेरी देख रहे हैं वैसे ही वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा और उस पे कर लीजिएगा, ठीक है। कितना टाइम है हमारे पास अभी? 3 मिनट ही रह गए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन प्रेजेंट ओवर हेयर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। जो जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट लिख दें जरा, मैं फिर चैट देख के बाद में अटेंडेंस लगा लेती हूँ। हु इज दिस गैलेक्सी S6 और क्यू मोबाइल i8 आई प्रो? मुझे क्या पता क्यू मोबाइल प्रेजेंट है तो कौन है ये, ठीक है। राइट डाउन योर नेम इफ यू डोंट हैव यूज योर, इफ यू हैवंट यूज योर ओन नेम इन द मीटिंग। जो लोग भी ये क्यू मोबाइल और गैलेक्सी S7 से मैसेजेस कर रहे हैं वो प्लीज अपना पूरा नाम लिखें। एंड अरीबा, प्लीज सेंड मी ऑल द क्लास कोड्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और बाकी सब जितने भी लोग हैं वो सब अपने पास उन क्लासरूम का जो मैसेज है उसको सेव कर लीजिएगा कहीं पर भी, ताकि आपके पास कभी कोई क्लासरूम आपसे मिस हो जाए या आपका आईडी पासवर्ड आप भूल जाएं तो आप बाद में उन क्लास कोड से उसको ज्वाइन कर सकें।
हाँ रोहना, मैं आपको उसी का बताऊंगी, मैं वीडियो बना दूंगी, प्लीज डोंट वरी। हो सकता है कि मुझे कोई क्लास नहीं भी मिले आपकी क्लास में बाद में, लेकिन मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी किसी भी वक्त जब भी आप लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी हुई और मुझे ना मिली अब एक्स्ट्रा कोई भी क्लास, तो मैं आपकी क्लास अलग से रीशेड्यूल करके किसी भी वक्त ले लूंगी जब भी आपका टाइम टेबल में फ्री स्लॉट होगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूंगी। होपफुली आपने सारे असाइनमेंट्स तो कर लिए होंगे। क्यों मोबाइल i8 आई प्रो कुछ कह रहे हैं? यमुना, यमुना हनीफ, जी यमुना कुछ कह रही हैं आप? हेलो? Okay, fine. Now everybody, please you can leave. Thank you so much and try to do the assignments on time. Okay? Allah Hafiz.